Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video, it is a continuation of Punjab Courts Act, but with the very specific topic which is petitioner writers. Petition writers is given under Punjab Courts Act section 46A. We have already discussed this, but generally we need to write a note on petition writers in for the mains examination. So with respect to that, let's read out the rules that high courts make from time to time, and the current rules that are prevalent in Punjab and Haryana for the petition writers. Let's read out those and figure out what all points we have to write for the same. Okay, so let's begin with the bare provision. As per 46A of Punjab Courts Act 1918, that provisions regarding petition writers is given. It says that High Court may from time to time make rules consistent with this act and any other enactments for the time being in force. तो बेयर लैंग्वेज में लिख दिया कि हाई कोर्ट बनाएगी टाइम टू टाइम जो भी रूल्स चाहिए होते हैं. सो वी आर गोइंग टू रीड दीज रूल्स विच आर 2014 के रूल्स जो लेटेस्ट अभी चल रहे हैं. सो रूल्स में क्या हाई कोर्ट क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी एज टू व्हाट पर्सन शैल बी परमिटेड टू एक्ट एज अ पिटिशन राइटर्स इन द कोर्ट सबऑर्डिनेट देयर टू. ठीक है, कि कौन लोग को परमिट करना है कि वो पिटिशन राइटर्स की तरह एक्ट कर पाएँ. और रेगुलेट करेंगे द इशू ऑफ लाइसेंस टू सच पर्सनस, द कंडक्ट ऑफ बिजनेस बाय देम एंड द स्केल ऑफ फीस टू बी चार्ज बाय देम. कि लाइसेंस इशू कौन करेगा, कैसा कंडक्ट रहेगा, कितनी फ़ीस होएगी, कितना वो चार्ज करेंगे. एंड सी इज़ डिटरमाइनिंग द अथॉरिटी बाय विच ब्रीचेज ऑफ सच रूल शैल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड द पेनल्टीज विच मे बी इम्पोज्ड. तो अथॉरिटीज़ डिटरमाइन करेंगी कि अगर वो ब्रीच करे आप रूल तो कैसी पेनल्टीज़ लगेंगी, इन्वेस्टिगेट कौन करेगा. सो ऑल दीज आंसर्स विल फाइंड आउट अंडर पिटिशन राइटर्स एज पर पिटिशन ड्राफ्टर्स रूल 2014. So okay, let's read it and highlight the key points that we need for our answer. So in exercise of powers conferred by 46A of Punjab Courts Act 1918 and all the powers enabling it in this behalf, High Court of Punjab and Haryana is pleased to make following rules. So these are the rules made by Punjab and Haryana High Court for Punjab and Haryana both. Okay, so these rules may be called Punjab and Haryana Chandigarh Petition Writers Rule 2014. So it's Chandigarh पे भी applicable है. Then definition in these rules, unless in the context otherwise required, petition किसको बोलेंगे, a document handwritten, typewritten or computer printed for the purpose of being presented to court or judicial or revenue officer or official, therefore includes a plaint and memorandum of appeal. तो किसी प्रकार का document which could be handwritten, typed, computer printed, which we need to present to the court or judicial or revenue officer, which may include plaint or memorandum of appeal. तो plaint भी हो सकती है, memorandum of appeal भी हो सकती है. कोर्ट में जो आपने कागज़ लगाना है उसको बेसिकली petition बोलेंगे. petition writer means जो बंदा जिसको लाइसेंस दिया होगा अंडर दीज रूल्स टू राइट petitions. ठीक है, he will be known as petition writers. तो टू प्रैक्टिस एज petition writer means to write petitions for hire. तो दिस बस एक मेजर हमें डेफिनेशन मिल गई पिटिशन की और पिटिशन राइटर्स की. इसके आगे चलते हैं. वी आर नॉट सपोज टू राइट एवरी थिंग गिवन अंडर द सन, बट वी हैव टू फिगर आउट कि क्या क्या ज़रूरत है. तो प्रैक्टिस एज पिटिशन राइटर्स हम कर लेते हैं. दैट नो पर्सन शैल प्रैक्टिस एज अ पिटिशन राइटर्स अनलेस ही हैज़ बीन ड्यूली लाइसेंस्ड अंडर दीज रूल. तो आप तब तक पिटिशन राइटर की प्रैक्टिस नहीं कर सकते जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिला. बट इसका प्रोवाइजो है कि any person licensed under any rule herein to in force shall be deemed to be have license under these rules, that these rules shall not apply to any advocates, pleaders or muktar in respect of petition writers for presentation to a court, revenue office in which he is qualified to practice, whether such petition be written by himself or his clerk or on his behalf, so that in the later case it may be signed by the employer. तो दीज रूल्स आर नॉट एप्लीकेबल टू एडवोकेट्स, प्लीडर्स या मुख्तियार. कि कोई अपना केस खुद भी ड्राफ्ट कर सकता है, बी दैट एडवोकेट, प्लीडर, मुख्तियार, और
आप खुद भी अपना केस ड्राफ्ट करके कोर्ट या रेवेन्यू ऑफिस में लगा सकते हो, ठीक है। वो खुद भी कर सकता है या उसका क्लर्क भी कर सकता है, और किसी उसके बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है। देन नेक्स्ट चलते हैं नंबर ऑफ पिटिशन राइटर्स। तो कौन डिसाइड करेगा? हाई कोर्ट शैल फिक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स हु कैन प्रैक्टिस एज पिटिशनर राइटर इन डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील और सब तहसील। लाइसेंसिंग अथॉरिटी देख लेते हैं कौन होगी। डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट शैल बी द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो डिस्ट्रिक्ट जज होएगा लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं ग्रांट ऑफ लाइसेंस के लिए। मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, गुड कैरेक्टर और कंडक्ट होना चाहिए, गुड हैंड राइटिंग हो जानी चाहिए, और 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, 18 साल या उससे ऊपर का। एंड ही इज़ क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो एग्ज़ाम कराएगी उसके अकॉर्डिंग वो एलिजिबल होना चाहिए। हाउएवर पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल, किसको नहीं मिलेगा? इफ़ ही इज़ एम्प्लॉयड ऑलरेडी बाय एनी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, कंपनी और एन एडवोकेट, या फिर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है, और ही हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ एनी गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन और अ कंपनी। उसको डिसमिस कर दिया गया है गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, किसी पब्लिक अथॉरिटी या कंपनी या कॉर्पोरेशन के द्वारा, और ही हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। देन ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, तब भी उसको नहीं मिलेगा। देन लाइसेंस की कंडीशन देख लेते हैं। एनी पर्सन डिजायरिंग टू ऑब्टेन अ लाइसेंस एज अ पिटिशन राइटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी विद द रिक्विसाइड फ़ी। तो वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाएगा रिक्विसाइड फ़ीस के साथ। फ़ीस होएगी 100 रुपये, टू बी पेड बाय मीन्स ऑफ कोर्ट फीस स्टैम्प। तो कोर्ट फीस के लगा कर 100 रुपये आप पे करोगे। Then licensing authority may, after taking into consideration the matters mentioned in the preceding rule, either grant or refuse license। तो फिर ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी की डिस्क्रिशन है, में वर्ड लिखा हुआ है कि वो दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। Then license shall not be refused without affording an opportunity of hearing to the applicant concerned। और अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आपको you'll have to follow the principle of audi alteram partem, that you will have to hear the other party, और रीजन्स ऑल्सो शुड बी रिकॉर्डेड अगर आपने उसको रिफ्यूज़ करा है तो। एंड कन्वे टू द एप्लीकेंट एंड फी पेड हिम शैल बी रिफंडेड, और जो उसने पैसे पे करे थे वो रिफ़ंड हो जाएगा। और लाइसेंस उसको फॉर्म ए जो इस रूल्स के साथ दिया है उसके अकॉर्डिंग इशू कर देंगे। एवरी लाइसेंस अनलेस सस्पेंडेड, कैंसल्ड, सरेंडर अर्लियर बी वैलिड अप टू 31 दिसंबर ऑफ 5th कैलेंडर ईयर। तो 5 साल के लिए लाइसेंस आपको दिया जाएगा, और आप उसको रिन्यू भी करवा सकते हो फॉर नेक्स्ट 5 years। रजिस्टर्ड ऑफ लाइसेंस पिटिशन राइटर्स इन फॉर्म बी नेक्स्ट टू दीज रूल्स विल बी मेंटेन्ड इन एवरी ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। तो दिस इज़ प्रोसीजरल मैटर। देन नेक्स्ट रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस देख लेते हैं। लाइसेंसी डिजायरिंग टू गेट हिज लाइसेंस रिन्यूड शैल विद इन 2 months before or after the date of expiry of license make an application for renewal to licensing authority along with requisite fees। तो लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए 2 महीने पहले या एक्सपायरी डेट के बाद 2 महीने के विदिन आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगा सकते हो, ठीक है। देन वी हैव नॉट टू गो बाय वर्ड टू वर्ड ऑफ दिस PDF, बस एक होलिस्टिक आपको आंसर बनाना है अपना। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे कैसे होता है। देन लेट्स सी अनदर कि प्रोडक्शन एंड सस्पेंशन कैसे होती है। एवरी लाइसेंस पिटिशन शैल इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ ईच कैलेंडर ईयर प्रोड्यूसेस लाइसेंस फॉर इंस्पेक्शन बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो आप हर साल के जनवरी के महीने में आप लाइसेंस को आप इंस्पेक्ट करवा सकते हो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। A note of such production with the date will be entered on the license. If the petition writer fails to comply with this rule, his name will be posted in the conspicuous place of the courthouse of licensing authority as well as the courthouse of the highest court in which he ordinarily practices, with an order that his operation of his license is suspended and that he'll be liable to the penalties if found practicing whilst such order of suspension is in force।
तो अगर आप नई इंस्पेक्शन करवा रहे हो तो आपका नाम ऐसे कंस्पिशियस प्लेस पे कोर्ट हाउस में जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे हाईलाइट कर दिया जाएगा, और सस्पेंशन भी हो सकती है इसकी वजह से। और एक चीज़ हमने बेयर लैंग्वेज में पढ़ी थी कि पेनल्टीज़ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि मैनर क्या होता है। मैनर ऑफ राइटिंग पिटिशंस। एवरी पिटिशन राइटर वाइल राइटिंग पिटिशंस, उसको कन्फाइन करना है अपने आप को कि वो सिंपल और इतनी प्लेन लैंग्वेज में लिखे कि पिटिशनर खुद अंडरस्टैंड कर पाए कि वो क्या पिटिशन लेकर जा रहा है। एंड शैल नॉट इंट्रोड्यूस एनी आर्ग्यूमेंट और कोटेशन फ्रॉम अ लॉ रिपोर्ट और लॉ बुक और रेफर टू एनी डिसीजन नॉट ब्रॉट टू हिज नोटिस बाय पिटिशनर। तो जो उसकी नॉलेज में है प्लेन क्लियर सीधा सीधा वो बस उतना ही कन्वे कर दे, उसमें कुछ ऐसा फैंसी किसी बुक से उठाकर या कुछ लॉ रिपोर्ट से उठाकर नहीं लिखना है, ठीक है। तो पिटिशन राइटर की अपनी सील होती है एट हिज ओन एक्सपेंस, तो उसमें वो अपना नाम, प्लेस ऑफ बिजनेस, लाइसेंस नंबर एंड ऑल वो मेंशन कर सकता है। देन आई वाज टॉकिंग अबाउट पेनल्टीज, सो यस लेट्स फिगर आउट penalties. Punishments. So any person who practices as a petitioner writer without license or petition writer who fails to obey the order passed under Rule 23 shall be liable to penalty not exceeding 500 rupees. तो 500 से ज़्यादा आपकी लाइबिलिटी नहीं होगी अगर आपने ओबे नहीं करा रूल 23। तो रूल 23 हम देख लेते हैं। रूल 23 इज़ order to rewrite a petition. Any court or revenue officer may order a petitioner writer to rewrite at his own cost any petition written by him which contravenes Rule 16 or is illegible, obscure or irrelevant matter or misquotation or for any other sufficient cause, ठीक है। Then punishments by High Court. Yeah, notwithstanding anything herein before contained, High Courts may, for any sufficient cause to be recorded or after inquiry as it thinks fit, dismiss any petitioner writer or suspend him from the practice for a specified period. तो हाई कोर्ट के पास भी पावर है कि आप किसी petitioner writer को सस्पेंड कर सकते हो, provided that no such order shall be made without giving opportunity of hearing that person charged. तो अगेन ऑडियो अल्टर पार्टम का रूल यहाँ लगता है कि आपको नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करना है, किसी को डिसमिस करने से पहले उसको सुनना ज़रूरी है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई थिंक अब हमें ब्रॉड आइडिया मिल गया है कि व्हाट टू राइट अंडर द टॉपिक ऑफ पिटिशन राइटर्स। सो वी हैव टू गिव अ ब्रॉड ओवरव्यू, वी हैव टू मेंशन अबाउट दिस रूल्स एंड शॉर्ट में हम सब कवर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल. Consider subscribing to my channel. I hope this helps. Thank you so much.